السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہلو، السلام علیکم جی کون بھائی جان؟ بھائی میں طارق بول رہا ہوں۔ طارق، ہاں اچھا آپ کا مسلک؟ ہاں آپ کا مسلک مسلک آپ کی جماعت کا نام؟ بھائی آپ یہ کون سی بھاشا نکالے ہیں؟ کوئی کسی سے بھی فون کرتے تو آپ جماعت پوچھتے ہیں، کیا بات ہے؟ چلیے کال کٹ کر دیجیے بھائی جان، ذرا میں بزی ہوں، کہیں بات کر رہا ہوں۔ ارے بھائی تھوڑا بتیا دیجیے ہم سے تھوڑا۔ مت بتائیے یار، کیا فائدہ؟ دیکھیے آپ یوٹیوب پہ بہت زیادہ فیمس ہو رہے ہیں۔ نہیں، مجھے فیمس ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے بھائی۔ نہیں بھائی، آپ تو بہت بڑے آدمی ہو رہے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ آپ تو ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ فاضل بریلوی صاحب کو فیل کر دیں گے۔ بہرحال آپ کو کیا پریشانی ہے؟ پریشانی بھائی ہم کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں کال کیا یار بھائی جان؟ کیوں پریشان ہو رہے ہیں رات میں؟ جس حال میں رکھا ہے صحیح ہوں، لیکن آپ مفتی ہیں، مولوی ہیں، کون ہے؟ میں جی تو قاری صاحب ہوں بھائی۔ قاری صاحب ہیں؟ ہاں اچھا، تو مولوی بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، مولوی صاحب نہیں ہوں، مولوی نہیں پڑھا ہوں۔ اچھا، سوال کریں گے کیا؟ نہیں جناب۔ نہیں ویسے تو لگتا سوال کریں گے آپ کچھ۔ کیا سوال کریں؟ تمہارے مولوی مفتی بھی جواب نہیں دیتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیے بھائی، جی میں آپ سے فون لگایا ہوں کچھ فالتو بکنے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہاں، میں آپ سے صرف یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھائی آپ مسئلہ لے کے کیا کریں گے بتائیے۔ میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا، پوچھ رہا ہوں، بات کرنے میں مزہ آئے گا، کھل کے بات ہوگی۔ مسئلہ سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیا کسی مسئلہ؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نے مجھے رات کے 11 بجے کال کیا ہے۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں بھائی، پھر میں آپ سے تکلیف دیکھ کے یوٹیوب میں اسی لیے میں آپ کو کال کیا کہ بھائی کو کون تکلیف ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، مجھے رات کے 11 بجے میری تکلیف پوچھ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، ارے مسلم بھائی ہیں، پوچھ سکتے ہیں نا تکلیف۔ تو آپ نے تو اپنی پہچان بتائی نہیں جناب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافق اپنی پہچان کو چھپائے گا۔ اچھا، تو آپ اپنی پہچان بتا دیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں نا مسلم ہوں میں، میرا نام محمد طارق ہے۔ اچھا، جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ مسجد میں؟ ہاں، جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے، میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھگایا تھا وہ کون لوگ تھے؟ وہ بھائی دیکھو نماز پڑھنے والے تھے نا، ٹوپی والے تھے، داڑھی والے تھے، ہاں اور حضور کے پیچھے کے نمازی تھے۔ آج کے کسی امام کے پیچھے کے نمازی نہیں تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے نمازی تھے۔ ہاں، کیوں حضور نے بھگایا؟ کیا بول رہے؟ چلیے کچھ نہیں بول رہا ہوں، کال کاٹ دیجیے یار، پریشان مت ہوئیے آپ، ٹھیک ہے؟ کال کاٹ دو۔ ارے بھائی تھوڑا سا ہم کو بتا دیجیے آپ۔ اچھا، آپ قاری صاحب ہیں نا؟ ہاں جی قاری صاحب، تھوڑا بہت علم ہے آپ کو؟ اچھا، دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا اہل حدیث؟ نہیں بھائی، میں تو دیوبندی سے ہی ہوں۔ دیوبندی سے ہے؟ ہاں۔ اچھا، سہارنپور سے ہے یا کہیں دوسری جگہ سے؟ نہیں، میں سہارنپور سے نہیں ہوں، میں بہار سے ہوں۔ بہار کون سی جگہ؟ بہار ارریہ۔ ارریہ ضلع سے ہیں؟ ہاں۔ اچھا جناب۔ ابھی فی الحال حیدرآباد میں ہوں۔ اچھا،
हाँ, वो बरेलवी की मस्जिद में अभी रहता हूँ मैं। मदरसा है छोटा सा, मंदिर हाट जानते हैं हैदराबाद में। बरेलवियों की मस्जिद में आप नमाज पढ़ाते हैं? हाँ। तकैया अपनाते होंगे जरूर। हाँ, तकैया अपना रहे होंगे, तकैया। बरेलवी बन के पढ़ा रहे हैं कि देवबंदी पढ़ के बन के? अरे भाई वो जिस तरीके से चला रहे हैं, चल रहे हैं, क्या करेंगे अब। नहीं नहीं नहीं, आप बता दीजिए मुझे आप, क्योंकि देवबंदी अगर तकैया ना अपनाए तो बरेलवी मस्जिद में रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वो पिछवाड़े पे लात मार के भगा देते हैं। भगाते नहीं भाई, वो जो जिम्मेदार है मस्जिद के। हाँ, तो वो तुम्हारा बदअकीदा होगा, जो जिम्मेदार है ना वो बदअकीदा होगा। जिस तरीके से वो चला रहे हैं, चल रहे हैं, हम क्या करेंगे। खैर, आप मेरी अपने आपके मोहल्ले के जो मस्जिद के लोग हैं, ठीक है, जो नमाजी हैं, जो मुक्तदी हैं, हाँ हाँ, अपने उस शख्स को छोड़ के जो मुतवल्ली है, हाँ, दूसरे लोगों से बात कराइएगा। इंशाल्लाह मैं बात करूंगा और बोलूंगा कि ये इमाम जो है ये देवबंदी है। क्या आप देवबंदी अकायद से वाकिफ हैं या नहीं? भाई मैं बता रहा हूँ, हाँ, मेरे यहाँ पे मौलाना है, ठीक है, वो 30 साल से है ना, 30 साल से बरेली की मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। देवबंदी है? हाँ, देवबंदी है। अच्छा, तो वो नाम के बरेल, खाली नाम के बरेलवी है कि हकीकत के बरेलवी है? भाई अगर आपको यकीन नहीं है ना, हाँ, तो दिन में कॉल कीजिए, मैं आपको वीडियो कॉलिंग पूरी हर चीज दिखाऊंगा आपको। मैं कॉल किसी को नहीं करता हूँ, अगर आपको कॉल करनी है तो आप कर दीजिएगा, ठीक है, मुझे दिखाइएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो, अगर यकीन है तो कोई बात नहीं है, अगर यकीन नहीं। मगर सुन्नी हनफी बरेलवी किसी बदमज़हब बदअकीदे को इमाम नहीं बनाते। और मैं लोगों को ये पैगाम भी दूंगा आपके जरिए से कि वहाबी देवबंदी जो है तकैया करके, तकैया अपना कर सुन्नियों की मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह हमारे एक गांव का इमाम सुन्नियों की मस्जिद में इमामत कर रहा था, तकैया अपना के बता रहा था कि मैं सुन्नी हूँ, मगर जब उसका पता चला कि ये सुन्नी नहीं देवबंदी है तो उसको हटा दिया मस्जिद से, जब तक सुन्नी बन के इमामत करता रहा। अच्छा भाई, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। मुझसे सवाल मत कीजिए जनाब, सवाल करना है तो आलिमों से कीजिए। एक ही सवाल कर रहा हूँ। तो एक सवाल आप करोगे, एक सवाल मैं करूंगा। हाँ ठीक है भाई, करिएगा, ठीक है। ठीक है भाई, आप ये जो 12 वफात मना रहे हैं, हेलो जी, बोले बोले। ये 12 वफात जो मना रहे हैं, ये कौन सी हदीस में है और कौन सी कुरान के कौन से आयत है, बताइए भाई कुरान के। अच्छा, ये 12 वफात है या 12 रबीउल अव्वल है? मतलब 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी। ईद मिलादुन्नबी है। हाँ, आपने तो 12 वफात बोला है। हाँ, मतलब वही ईद मिलादुन्नबी जो मना रहे हैं आप। अच्छा, ये कौन सी हदीस में है भाई? कौन से हदीस में है? हाँ, देखिए भाई, हर चीज एक मिनट में हम ऐसे बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसा मिसाल दीजिए कि जिसे बोतल के ढक्कन पे लग जाए, बस। हाँ हाँ ठीक है, ऐसी मिसाल देता हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे मिसाल अच्छा दीजिए हमको, ऐसे अच्छा हदीस अच्छा बताइए बस। तो इस पर आपका एतराज क्या है कि अगर ये किसी हदीस में नहीं है, ठीक है, और हमने इसको किया, हाँ, तो इस पर आपका क्या एतराज है, थोड़ा उसका खुलासा कर दें, इंशाल्लाह बात करने में मजा आएगा। हमको इसे एतराज ये है कि जो बड़े बड़े मौलाना है ना जी, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहें कि ढोल बजाना हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु, क्या बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मतलब ढोल बजाने को हराम करार दिया है ना। तो हमारे किस आलिम ने कहा कि ढोल बजाओ? हाँ? हमारे किस आलिम ने कहा है कि ढोल बजाओ? आपके आलिम ढोल बजाने का है? किस आलिम ने कहा है हमारे ढोल बजाओ? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ढोल बजाना हराम है, हराम। अच्छा, तो हमारे किस आलिम ने कहा है कि ढोल बजाओ? आप तो ढोल बजा रहे हैं। कौन सा आलिम ने कहा है? कौन बजा रहा है ढोल? मैं कह रहा हूँ भाई, ढोल बजा रहे हैं। तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। अच्छी मुहर्रम मनाते, मुहर्रम में ढोल बजाते हैं। हम सुन्नी हनफी बरेलवी नहीं करते। हाँ? हम सुन्नी हनफी बरेलवी नहीं करते। जो मसला के अहले सुन्नत मसला के आला हजरत से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने आप को सुन्नी हनफी बरेलवी कहते हैं, हाँ, वो नहीं करते। और जो खाली नाम के सुन्नी है, हाँ, ठीक है, अच्छा, वो करें तो करें, जो आला हजरत को नहीं फॉलो करते, ठीक है। जो आला हजरत को फॉलो करता है
وہ یہ ڈھول تاشا گاجا ان سب سے دور رہتا ہے. اچھا ہاں بہرحال آپ اسی پہ چلیے کہ جشن عید میلاد. ایک منٹ, بکواس کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے امام صاحب. 11 بجے تم نے رات میں کال کیا, میں رات میں کسی بد مذہب سے بات نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ہم نے جشن عید میلاد النبی منائی, ہاں ٹھیک ہے, تو آپ کے پیٹ میں تھوڑا سا درد ہوا, تو اس درد کی بنا بتا دیجئے وہ درد کیوں ہوا؟ درد ہم کو اس لیے ہوا کہ آپ ڈی جے بجا کے ڈی جے کے سامنے ڈانس کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, کپڑا پھاڑ رہے ہیں, گاڑی ٹکرا رہے ہیں. اچھا ایک منٹ, ہاں بتائیے یہ کون سے حدیث؟ ایک منٹ, یہ جو آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ ڈی جے بجا کے ناچ رہے ہیں, گانا گا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اچھا اب میرا اعتراض ہے, میں سوال تو آپ سے کوئی اور کرتا, مگر اب سوال وہ نہیں کروں گا, اب سوال آپ ہی کے جیسا کروں گا. اب سنیے, دیکھیے امام صاحب, آپ امامت کرتے ہو, خاموشی سے پیار سے میری بات کو سنو, ورنہ آپ مجھ سے نور حسن سے بات کر رہے ہیں, آپ کی عزت کا تہس نہس ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ہاں آپ کی عزت نیلام ہو جائے گی. سنیے, نور حسن کو وہی کال کرتا ہے جس کی عزت نیلام ہونی ہوتی ہے. بہرحال سنیں, چوپیے, میں نے آپ کی بات کو خاموشی سے سنا, پیار سے سنا. اب میری بات کا جواب دیجئے. آپ کی تبدیلی جماعت جاتی ہے, 3 دن کے لیے نکلتی ہے, 10 دن کے لیے نکلتی ہے, مہینے بھر کے لیے نکلتی ہے, 3 مہینے کے لیے نکلتی ہے, 4 مہینے کے لیے نکلتی ہے, 6 مہینے کے لیے نکلتی ہے, سال بھر کے لیے نکلتی ہے. قرآن اور حدیث میں اس طرح سے کہاں تعین ہے جس طرح سے آپ کے تبدیلی جماعت والے جماعت کو نکالتے ہیں. اور پھر دوسری بات, مسجدوں میں سوتے ہیں, مسجدوں میں پادتے ہیں, مسجدوں میں احترام کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. مسجدوں کا ادب نہیں ہے ان لوگوں کو. پہلے ایک منٹ بتائیے بھائی, ہاں تبلیغی کرنا کیا حلال ہے یا حلال کرے یہ بتائیے. تم لوگ تبلیغ جو کرتے ہو وہ ابو جہل والی تبلیغ کرتے ہو, مسلمانوں کا ایمان لوٹنے نکلتے ہو. اچھا ہاں, اور جو ہم مسلمان تبلیغ کرتے ہیں, الحمدللہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. لیکن آپ سنیں ایک بات, پہلے میری باتوں کا جواب دیا جائے کہ مسجدوں میں جو تم احترام کرتے ہو, تمہیں جو غسل کی حاجت پیش آ جاتی ہے, تم سے مسجد کا الگ نہیں سویا جاتا, مسجد میں پاکتے ہو پوری رات, ڈھر 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 ڈھر. ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو, جواب دیجئے. پہلے اس بات سنیے, جو میں نے کہا ہے اس کا جواب دیجئے, آگے بالکل بولنا ہی نہیں ہے. اس کا جواب میں دے رہا ہوں. 3 دن, 10 دن, مہینہ بھر, 2 مہینے, 3 مہینے, اس کا تعین کہاں ہے قرآن اور حدیث میں کہ اس طرح؟ دے رہا ہوں بھائی, اس کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو, دیجئے. اس کے لیے بھائی دیوبند سے بھی فتویٰ آیا. کیا فتویٰ آیا؟ جو لوگ قلعہ میں جائے گا یا 3 دن, 10 دن, 40 دن, 4 مہینے, 1 سال کے لیے, وہ اس مسجد میں رہے کہ جس مسجد میں روم الگ سے ہو, اس کے لیے ٹھیک ہے. سن رہا ہوں, سنائیے. مگر اس کے باوجود تمہارے لوگ مدرسہ ہونے کے باوجود مسجد میں سوتے ہیں. لیکن سوتے ہیں بھائی, وہ مجبوری ہے. کائے کی مجبوری ہے؟ جب مدرسہ برابر میں ہے تو مجبوری کائے کی ہے؟ اب ایک بات سنیے, نہیں, مجبوری کس چیز کی ہے جب مدرسہ برابر میں ہے؟ مجبوری کس چیز کی ہے؟ کہ احتلام ہوتے ہوئے کسی کو دیکھیں آپ. میرا خود احتلام ہوا ہے, میرا خود احتلام ہوا ہے. دھوئے تھے کہ نہیں مسجد میں؟ دھوئے تھے کہ نہیں؟ ابے ان حرامیوں نے بتایا ہے کب, کچھ سکھایا ہے کب ہے؟ وہ خالی یہ کہہ دیتے ہیں کسی کو نہانے کی ضرورت پیش آ جائے, کسی کو نہانے کی حاجت پیش آ جائے تو اکیلے مت جانا, کسی کو ساتھ میں اٹھانا, کسی ساتھی کو اٹھا کے لے کے جانا. تو اٹھایا نا, اٹھایا تھا کیا؟ ہاں میں نے اٹھایا. تو کیا ہوا؟ پھر وہی بات. ابے کمینوں, جب مسجد میں اطلاع ہوگا تو کیا ہوگا؟ ابے مسجد دھونا چاہیے نا بیوقوف. مسجد ابے کہاں دھوئی کمینے, کہاں دھوئی انہوں نے, کہاں دھوئی مسجد؟ جب تم بتاؤ گے تب نا کہ مسجد. ابے کمینے, کسی کا بھی ہو سکتا ہے, اور تم سالے بدتمیزی کرتے ہو, اس میں زنا کاری بھی کرتے ہو. کون برابر ٹھیک کرتے ہیں؟ ہمارے بلاسپور کی مسجد ہے, سالے ان کمینوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا. اتنے کنڈوم نکلے اس مسجد میں, معاذ اللہ. سالے اس مسجد کو پتہ نہیں یہ چوپال بنا کے رکھے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا کر کے رکھے ہوئے تھے.
अबे कंडोम का क्या करते हो तुम? भाई मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आवाज से, बिलासपुर की मस्जिद में हजरत क्या बताऊं आदमी कहने के है और लोगों को सुने। अच्छा एक मिनट देखिए, मैंने सवाल किया तो मैं गुमराह कर रहा हूँ। सुने एक मिनट, तुमने सवाल किया था कि तुम देखिए भाई सुनिए, देखिए भाई सुनिए मैं गुमराह नहीं। अरे देखो भाई प्यार मोहब्बत से बात करो वरना कॉल काट के चले जाओ, इज्जत को बचाओ। नूर हसन को वही कॉल करता है जिसकी इज्जत नीलाम होनी होती है। जिसकी इज्जत नहीं, जिसकी इज्जत है वही बहरहाल चलिए ये बताइए हजरत इमाम साहब, एक मिनट इमाम साहब हैं आप, आपसे एक सवाल कर लूँ थोड़ा छोटा सा? बोलिए। अच्छा हजरत एक मिनट, छोटा सा आपसे एक सवाल है कि ईशा की 4 सुन्नतें पहली बंदा पढ़ रहा है, कायदा उला में कायदा अखीरा समझकर वो तशहुद के बाद दरूद भी पढ़ रहा है। अच्छा। फिर उसे ध्यान आया कायदा अखीरा नहीं कायदा उला है, खड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, यानी कायदा उला में तशहुद के बाद दरूद से भी पढ़ा, फिर वो खड़ा हो गया। ठीक है। उसने तीसरी रकात पूरी करी। ठीक है। चौथी रकात में इमाम साहब आ गए। अच्छा। उधर जमात खड़ी हो गई, इधर ही अपनी चौथी रकात पूरी कर रहा है। अच्छा। बगैर सजदा साहब किए सलाम फेर के, बगैर सजदा साहब किए सलाम फेर कर जमात में शामिल हो गया। अच्छा। उसकी सुन्नतें हुई या नहीं हुई? देखिए भाई दरूद शरीफ जो पढ़ा है वो पढ़ना सुन्नत है। ठीक है। अच्छा वो सुन्नत में ही पढ़ा है, सजदा सो नहीं होगा। ठीक है जी, सजदा सो नहीं होगा, नमाज हो गई उसकी। नमाज हो गई। हाँ। मसला समझा है आपने? मसला समझा है? मसला मैं समझ गया। देखिए आप जो कह रहे हैं कि कायदा उला में तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ लिया। ठीक है। हाँ। उसके बाद तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया जी। तीसरी रकात भी मुकम्मल कर लिया जी। अब चौथी रकात में बैठा जी। चौथी रकात बैठा, जैसे इमाम साहब आ गया, नमाज खड़ी हो गई इधर। ठीक है। हाँ। अब वो क्या कहते हैं सजदा सो किया नहीं, सलाम फेर लिया है ना? हाँ यही कह रहे हैं ना आप? जी जी जी। देखिए भाई दरूद शरीफ पढ़ना क्या है पहले बताइए हमको। अच्छा ये बताइए एक मिनट, पहले ये बताइए दरूद शरीफ पढ़ना क्या है नमाज में, पहले बताइए। सुन्नत है। सुन्नत है। अगर सुन्नत पढ़ लिया तो सुन्नत में कौन सी फायदा से? अच्छा एक मिनट हजरत, असर के 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ रहा है बंदा। अच्छा। ठीक है। हाँ? असर के 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ रहा है, असर के पढ़ रहा या जोहर के पढ़ रहा है। अच्छा ठीक है। उसके साथ भी यही मामला पेश आया। अच्छा जी। तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ। फिर ख्याल आया, फिर खड़ा हो गया। अच्छा। 4 रकातें पूरी करी, बगैर सजदा साहब किए सलाम फेर दिया। अच्छा बताइए दरूद शरीफ कहाँ तक पढ़ा? अरे हजरत सुनो तो दरूद शरीफ मुकम्मल पढ़ा या थोड़ा सा पढ़ा, बोले बताइए। फिर वही बात यार हजरत घुमा रहे हो बात को, पूरा पढ़ा क्या अधूरा पढ़ा? मतलब अल्लाहुम्मा सल्ली अला इतना पढ़ा क्या पूरा पढ़ दिया? उसने आधा दरूद शरीफ पढ़ दिया, ऐसे करके मानो। आधा? हाँ। अगर भाई देखिए आधा अगर पढ़ दिया फर्ज नमाज में, हाँ, तो उसकी ताखीर हो गई। ठीक है। उसके ऊपर सजदा तो वाजिब है। क्या चीज? उसके ऊपर सजदा तो वाजिब है क्योंकि ताखीर हो गई ना, ताखीर की वजह से। क्या हो गया? थोड़ा जोर से बोलो भाई हजरत। मैं जोर से बोल रहा हूँ। हाँ। ये शोर किधर से है? शोर किधर से है? तशहुद के बाद हाँ दरूद शरीफ कहाँ तक था ये बढ़ के हमको बताइए। आधा दरूद शरीफ पढ़ दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यहाँ तक पढ़ दिया। चलिए ऐसा करके मानिए। हाँ। तो इसके जो शख्स नमाज पढ़ रहा है, हाँ, उसके ऊपर सजदा तो वाजिब हो गया। अच्छा। हाँ कि बोले क्यों? हाँ, इसलिए कि भाई सजदा तो इसलिए वाजिब है, फर्ज नमाज में उसकी ताखीर हो गई। क्या ताखीर हो गई? ताखीर ना,
हाँ ताकि इसलिए उसके ऊपर संतास हुआ। अच्छा अच्छा, और ईशा की जो सुन्नतें मैंने बताई हैं, हाँ ईशा की जो सुन्नतें बताई हैं, सुन्नत, हाँ मैंने जो ईशा की सुन्नतें बताई हैं, हाँ हाँ वो नमाज हो गई या पढ़ना पड़ेगी दोबारा? अगर सजदा सौ नहीं किया है हाँ हाँ, तो फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। अगर सजदा सौ कर लिया तो फिर नमाज हो गई। अभी तो आप कह रहे थे नहीं सर नहीं किया, अभी तो आप कह रहे थे कि नमाज हो गई। अरे भाई सुन्नत की बात कर रहा हूँ, अभी आप फर्ज की बात कर रहे हैं। हाँ हजरत, मैं सुन्नतों को तो कह रहा हूँ कि ईशा की 4 सुन्नतें जो पढ़ी थी वो सर की ईशा की 4 सुन्नतें हुई कि नहीं हुई? वो 4 सुन्नतें हो गई भाई। फर्ज में देखिए, फर्ज में वाजिब है ना, है? फर्ज में अगर ताखीर हो गया। अच्छा आप बोलिए, क्या बोलिए? बोले आप बोले। फर्ज में ताखीर हो गई तो सजदा साहब वाजिब है। हाँ वाजिब है। और अगर सुन्नतों में ताखीर हो गई, सुन्नतों में अगर तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ लिया तो उसमें तो कोई बात नहीं है, भूल से पढ़ लिया। सुन्नतों में नमाज हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। मसला मालूम है पूरा? हाँ बिल्कुल मालूम है। अच्छा अच्छा भाई मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ। हजरत एक मिनट मैं आपको सवाल कर रहा हूँ। जोहर की 4 सुन्नतें हैं, हाँ उसमें भी यही मामला हो गया। अच्छा, तो वो भी हो गई। अरे भाई सुन्नत देखिए, असर की सुन्नत और जोहर की सुन्नत में फर्क है, ठीक है? असर की नहीं कह रहा हूँ, ईशा की सुन्नतें हैं। ईशा की सुन्नतें हैं, ईशा की। हाँ ईशा की सुन्नत है और जोहर की सुन्नत में फर्क है भाई। अच्छा अच्छा, हाँ क्या फर्क है? फर्क ये है कि अगर आप जोहर की सुन्नत छोड़ देंगे, हाँ, तो अगर जैसे नमाज की टाइम अभी 5 मिनट पहले मस्जिद आप चले गए, ठीक है? हाँ, अगर आप देखें 5 मिनट है, 4-5 किलो बैठ जाता हूँ, अगर फिर बाद में भी आप नहीं। अरे यार ये शोर किधर से है? शोर खत्म करो यार, मजा नहीं आ रहा, किरकिरा मजा हो गया भाई। हजरत रमजान भाई, हाँ बोलिए। आप अपनी तरफ से जरा म्यूट करिए। उधर की आवाज थोड़ी म्यूट करें जो उधर से आवाज नहीं आए। क्या हजरत? आपकी तरफ चिल्ला रहे हैं जनाब, इमाम साहब आपकी तरफ से आ रहा है शायद। हैं? आपकी तरफ से शोर है। रमजान भाई, बोले भाई। रमजान अली भाई, आपकी तरफ से म्यूट करिए जरा हजरत। भाई मेरे तरफ से कोई नहीं है भाई यहाँ पे। हैं? आवाज समझ में नहीं आ रही इनकी, इमाम साहब की। अकेला सोया हुआ हूँ रूम पे। हाँ भाई बोलिए भाई। जी, मैं ये कह रहा था कि ईशा की 4 सुन्नतें, जोहर की 4 सुन्नतें और असर के 4 फर्ज, ठीक है? ये 3 की बात हुई। पहले बता रहा आपको जी कि ईशा की सुन्नत है और जोहर की सुन्नत में फर्क है भाई। अच्छा अच्छा, क्या फर्क ये है कि अगर आप जोहर की सुन्नत अगर जानबूझकर छोड़ देंगे ना, हाँ, तो आपको गुनाह मिलेगा आपको, ठीक है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गुनाह की बात नहीं कह रहा हूँ भाईजान। सुनिए, 1 मिनट सुनिए। ये जोहर की सुन्नत है, सुन्नत मौकीदा है, ठीक है? ठीक है। और ईशा की जो 4 का सुन्नत है पहले वाला, हाँ, वो गैर मौकीदा है। अगर आप इसको पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा जी। मगर जोहर की 4 सुन्नतों में यही मामला पेश आया। अच्छा। और बगैर सजदा साहब के सलाम फेरा, हाँ, नमाज हुई? वो 4 सुन्नतें हो गई या नहीं हुई? नहीं, इसमें नहीं होगा, नहीं होगी। नहीं। और ईशा वाली भी नहीं होगी, सजदा से करना पड़ेगा, सजदा साहब करना पड़ेगा। हाँ। क्यों? क्यों भाई मैं बताया ना कि फर्ज नमाज में ताखीर नहीं होना। अच्छा, फर्ज नमाज में ताखीर नहीं होना। अच्छा, और सुन्नतों में ताखीर हो जाए तो? अगर गैर मौकीदा में ताखीर हो गया, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। थोड़ा बहुत चल जाएगा।
लेकिन अगर सुन्नत जो जोहर की सुन्नत है, जी, अगर इसमें होगा तो नहीं चलेगा भाई। अच्छा नहीं चलेगा। नहीं, और ईशा में चल जाएगा? हाँ ईशा में तो चल जाएगा क्योंकि गैर मौकीदा है वो। अच्छा अच्छा, वो क्यों चलेगा, जरा वो थोड़ा बता दे क्यों चलेगा? क्योंकि वो गैर मौकीदा है ना, थोड़ा बहुत सवाब मिलेगा। अच्छा, और अगर बंदा डेली ऐसा करे तो नमाज होगी कि नहीं होगी? नहीं, डेली अगर जानबूझ के करे तो भाई नहीं होगी। मसला पढ़ के दोबारा से बताइएगा, ठीक है? करा जानबूझ कर अगर करेगी? अरे भाई कोई आदमी लड़की है या लड़का है करेगा। जी जी जी, बोले। आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा अगर डेली ऐसा करे, समझ रहे हजरत? हाँ सुन रहा बोलिए। डेली का उसका यही मामूल हो कि ईशा की नमाज में वो तशहुद के बाद दरूद शरीफ भी पढ़े। अच्छा, हाँ, तो नमाज होगी या नहीं? अच्छा, जो बंदा नमाज पढ़ रहा है, हाँ, वो जाहिल है या आलिम, पहले ये बताइए। आलिम है। आलिम है जी। देखिए, आलिम तो ऐसा कर ही नहीं सकता भाई। चलिए, जाहिल है। जाहिल है तो उसको अगर वो पढ़ भी लिया इसके लिए चल जाएगा। अख्तर भाई, बोले क्यों यार थोड़ा रहम खा लो यार। हाँ, तो थोड़ा रहम खा लो यार, हल्का सा। यहाँ तक आवाज आ रही है खूब ज्यादा यार। जी हाँ बोले भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आलिम है। अच्छा भाई सुनिए, आपने मुझे 3 सवाल कर लिए, ठीक है? अरे 3 सवाल कहाँ किए, वही एक सवाल चल रहा है यार जनाब, आप ही घूम रहे हो चारों तरफ। 3 सवाल कर लिए, मैं एक सवाल देखिए। हाँ ठीक है, आप कीजिएगा, पहले इसको तो फाइनल करें। हाँ बताइए। आलिम है, हाँ, और वो यही उसका मामूल है, नमाज होगी या नहीं होगी? क्या मामूल है? यही मामूल जो मैंने आपको बताया, दरूद शरीफ के तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ना। नहीं, अगर वो भूल से अगर कर दिया, भूल से नहीं, जानबूझकर तो भाई नहीं होगी। मसला पढ़ो पहले, ठीक है? क्यों? मसला पढ़ो पहले, मसला क्या पढ़ूं? पहले इसका मसला पढ़ना, फिर उसके बाद मुझसे बात करना। आप कौन सी किताब से बता रहे हैं? आपको बताइए किताब की। मैं जिस भी किताब से बता रहा हूँ, आप पहले अपने आलिमों से मसला पूछें, मुफ्ती साहब को लाइन पे लें, फिर उसके बाद बात करें। इमाम साहब, अगर नमाज में कोई गलती हो गई तो क्या करोगे? अरे यार थोड़ा कम कर लो ना यार, अब मतलब ज्यादा बढ़ा जा रहे हो। हेलो, देख रहे हो यार, नमाज में अगर कोई गलती हो जाए सौदा तो करेंगे। तो ईशा में अगर आपने यही मामूल बनाया तो नमाज नहीं होगी? ईशा में अगर जानबूझ कर मामूल हर रोज बनाएंगे तो नमाज होगी भाई। जनाब, गैर मौक़िदा सुन्नतों में तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ना, दुआ पढ़ना, ये अफजल है, क्योंकि वो गैर मौक़िदा सुन्नतें हैं, मौक़िदा सुन्नतें नहीं है। कौन, ईशा का? जी हाँ। अच्छा जी, पहले यार मसला पढ़ो इमाम साहब। आप चारों तरफ घूम रहे थे, ठीक है? आप चारों तरफ घूम रहे थे। अच्छा। कभी कह रहे थे नहीं होंगी, कभी कह रहे थे हो जाएंगी। आपने पहले कहा हो जाएंगी, ठीक है? फिर उसके बाद अरे जनाब, आपने कहा था पहले हो जाएगी, फिर मैं आपको पूछने वाला था किस वजह से होगी, तो फिर आपने कहा कि वो गैर मौक़िदा सुन्नतें हैं। फिर मैंने आपसे फर्ज का पूछा, ठीक है? फर्ज में हो जाएगी, बताइए। नहीं होगी, फर्ज में भी नहीं होगी और मौक़िदा सुन्नतों में भी नहीं होगी। सजदा साहब वाजिब है, सजदा साहब वाजिब है, मगर गैर मौक़िदा सुन्नतों में क्या चीज? मैं वही बात कहा हूँ ना कि जो होगी सुन्नत है और ईशा की 4 रकात फर्ज में नहीं होगी। जनाब मौक़िदा है उसमें हो जाएगी। जनाब आप कह रहे थे कि कभी कभी हो जाएगी, थोड़ी बहुत हो जाएगी, आपको खुद मसला ठीक से नहीं मालूम है जनाब। आप तो वो क्या बोलते हैं, कयास लड़ा रहे थे। अरे कयास नहीं भाई, सुनिए जनाब, अब ये सब बातें खैर छोड़ो, आप दोबारा से इस मसले को पढ़ें, ठीक है? फिर उसके बाद बात करिएगा। जी कोई बात नहीं है, बहरहाल आपके बड़े बड़े मुफ्तियों से मैं ये बात कर चुका हूँ, है ना? तो आपके बड़े बड़े मुफ्ती घूम जाते हैं।
मुफ्ती की बात खैर करिए। अब मैं इसीलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपके मुफ्ती इस चीज को समझ लें, देख लें, ठीक है? सुनिए बताएं। इससे बात किया है सर, आप तो आपके यूट्यूब में देख रहे हैं कि मौलाना ताहिर गयाबी है, मौला तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील साहब भी है पाकिस्तान के, और मौलाना ताहिर गयाबी भी है, हाँ उसका भी तस्वीर लगाए रखे हैं। क्या मौलाना ताहिर गयाबी से टक्कर ले पाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बात कराइए मेरी ताहिर गयाबी से। नंबर है आपके पास? भाई देखिए, मैं आपको बुरा नहीं मानिएगा, ना बुरा नहीं मानूंगा, ताहिर गयाबी का नंबर लीजिए, मुझे दीजिए, मैं बात करूंगा। ताहिर गयाबी ऐसे मौलाना बड़े बड़े, अरे भैया जैसे भी है, मैं कह रहा हूँ आपके कुतुब है, पूरी दुनिया के सबसे बड़े आलिम है ताहिर गयाबी, ठीक है? आप मेरी बात कराइए आप, और आप टॉपिक चुन लीजिए, किस टॉपिक पर बात कराएंगे, हाँ? किस टॉपिक पर बात कराएंगे वो टॉपिक चुन लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी किस टॉपिक पर बात कराएंगे बोले? ठीक है, आप हमको जिस वक्त मिलेगा अच्छा, तो बात करेंगे। तो ताहिर गयाबी साहब का नंबर है आपके पास? हाँ मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो दे दीजिए मुझे। नहीं आपको नहीं दूंगा भाई, क्यों दूंगा? आप उसको परेशान करेंगे बेचारे। नहीं 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 नहीं, आप बहुत बड़े मुफ्ती साहब है। अच्छा तो अभी लाइन पे ले लीजिए, अल्लाह करे कि आप बहुत बड़े, अभी लाइन पे ले लीजिए। अल्लाह करेगा आपको और बहुत बड़े मुफ्ती बनाए। चलिए भाई, आप लोग तो बुजुर्ग है, हम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, हम लोग तो गुनाह के समुंदर में डूबे हुए हैं, ठीक है भाई? आप तौबा कर लीजिए, देवबंदियत से गुनाहों के समुद्र से निकल जाइए। तौबा करेंगे जो बरेली में आ जाए। हाँ अरे भाई आप लेकिन बहुत बड़े बात बोल दिए। क्यों? मैंने आपको दोजख से बचाने की बात की है। दोजख से? आज भाई वाला बताइए कि बरेलवी देवबंदी जो है वो कौन सी गुनाह कर रहा है, बताइए। देखिए आपके जो बुजुर्ग हैं, थानवी जी, ननौतवी जी, गंगोही जी, अमेठवी जी, हाँ ये लोग बदतरीन, देखिए अब मैं क्या बोलूं, आप बुरा मान जाएंगे, अगर बुरा ना माने तो बात कहूं। लेकिन नहीं, देखिए बदतरीन के बारे में नहीं बोलिए, दूसरा नंबर